Hello students, today I am going to introduce about some important questions of chapter P block elements. Now the first question is, why is bismuth 5 a strong oxidant than the antimony 5? Now bismuth is present in plus 5 oxidation state and antimony is also present in plus 5 oxidation state, but bismuth is a stronger oxidant. Give reason. It means, beta, the stability of plus 5 oxidation state down the group that will be decreases. Okay, this is nitrogen, phosphorus, this is arsenic, bismuth and antimony. Okay, means down the group stability of plus 5 oxidation state that will be decreases as compared to plus 3 oxidation state. Okay, means plus 3 oxidation state increases and plus 5 decreases. What is the reason behind this? Due to inert pair effect. Means in the inert pair effect, the inability of ns electrons to take part in the bonding. Okay, so bismuth plus 5 that gain the 2 electrons and it get reduced to bismuth 5. Okay, so it is a stronger oxidant than the antimony. Okay, now next is, which is the stronger oxidizing agent, bismuth plus 5 or antimony plus 5? So bismuth is a strong oxidizing agent. Reason behind this is due to inert pair effect, means inability of ns electrons to take part in the bonding. Okay, now next question is, why is red phosphorus less reactive than the white phosphorus? क्योंकि जो बेटा वाइट फास्फोरस है दैट हैज़ द एंगुलर स्ट्रेन इन द P4 स्ट्रक्चर. ये आपका P4 होता है. ओके, 1 2 3 एंड 4. इसको हम इस टाइप से भी बनाते हैं, ऐसे बन जाता है ये. ओके, this type of structure P4. White phosphorus has angular strain in its P4 molecules and where the bond angle is only 60 degree. bond angle इसमें 60 डिग्री होता है बस, इसलिए जो वाइट फास्फोरस होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द रेड फास्फोरस. ओके, वाई डज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज NO2 डाइमराइजेस. ठीक है, देखो बेटा NO2 डाइमराइज कैसे होता है. ये NO2 का है N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डेटिव बॉन्ड O. इसको जब हम यहाँ से करते हैं N डबल बॉन्ड O और डेटिव डाइमराइज हो जाता है. इट मीन्स इट विल फॉर्म N2O4 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4. NO2 contains nitrogen having 7 valence electrons plus oxygen having 8 valence electrons, means 2 multiply 8 and that is equal to 23. odd electron से बना है. So in valence shell nitrogen has 7 electrons and these are less stable. To acquire the stability it dimerizes and to form the N2O4. Okay, so this is stable form. Now next question is, what is the oxidation state of phosphorus in H3PO2 molecule? देखो बेटा, दिस इज हाइड्रोजन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है X माइनस O2. O2 में क्या होता है, इसकी जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है ऑक्सीजन की, तो 2 2 जो 4, तो -4 दैट इज इक्वल टू 0. +3 प्लस X -4 इज इक्वल टू 0, X -1 is equal to 0 and then X is equal to +1. So this is the oxidation state of H3PO2 molecule. Okay, now next question is, draw the structure of O3 molecule. O3 क्या होता है, ओजोन. दिस इज O3 बेटा, O3 molecule, दिस इज ओजोन. एंगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका. ओके, ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला लॉन पेयर इधर जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और दिस इज, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा. ओके, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करेगा. ओके,
नाउ नेक्स्ट इज फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई? देखो बेटा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो -1 शो करता है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, स्मॉल साइज है, एंड सेकेंड रीजन इज दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, so it does not have any d orbitals in its valence shell, so it cannot expand it octet, so it does not show the positive oxidation state। जबकि जो अदर हैलोजन्स एटम है जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें क्या होता है बेटा, इनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और ये शो करता है मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, other halogens that have d orbitals, so it exhibit many other oxidation state। okay, now next is give the IUPAC name of the following compounds। जैसे ये है बेटा, कार्बन CH3H C CH3 और यहाँ पे इसमें बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या, देखो इसमें हम यहाँ से लेंगे, ओके, 1 2 3 4, ओके, तो इसका जो नाम होगा वो देखो कैसे होगा बेटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ओके, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल ग्रुप है, पेंट 3 इन, 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 3 इन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनर्ट एज कंपेयर टू फास्फोरस। वाई? बिकॉज जो बेटा फास्फोरस होता है उसमें पी बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, दैट इज मच वीकर देन द नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, so the bond length of nitrogen is very small and the bond dissociation energy that is very large, which make it inert and unreactive। okay, so the phosphorus become more reactive। okay, now next is draw the structure of XeF2 molecule। ये जीनोन है बेटा, कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चर, देखो जीनोन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस फ्लोरीन में 7 है and it is multiply by 2, तो 8 plus 14 that is equal to 22, 22 by 8। ओके, तो 8 टू जा 16, 16 प्लस 6 रिमाइंडर, रिमाइंडर को आप हमेशा 2 से डिवाइड करोगे, तो दिस इज 3, इट मीन्स 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लॉन पेयर एंड टोटल इज 5। ओके, मीन्स 3 आपके लॉन पेयर्स रहेंगे, 2 बॉन्ड पेयर, एंड इट शेप शुड बी pentagonal bipyramidal, but due to the presence of 3 lone pairs of electrons its shape is distorted। okay, and its shape is linear with 180 degree bond angle, तो आपकी linear shape आएगी। okay, now next is draw the structure of XeF4। ठीक है, देखो बेटा इस केस में क्या होगा, XeF4 के केस में ये आपका जो स्ट्रक्चर है दिखा रखा है इधर, मैं इसको शो करती हूँ। जीनोन के वैलेंस में 8, फ्लोरीन में 7 मल्टीप्लाई 4, 8 प्लस 28 दैट इज 36, 36 बाई 8 प्लस 4 बाई 2, then 4 plus 2 6, so this is sp3d2। okay, this hybridization, one more thing, sp3d2, again I write this beta, xenon में 8 प्लस फ्लोरीन दैट इज 7 मल्टीप्लाई 4, तो दिस इज 8 प्लस 20
8. This is 36. 36 by 8. 8 4 जा 32 plus 4 are remainder, divide by 2. This is equal to 2. Okay, then what will be 6 is here. Then hybridization is sp3d2. तो its shape is this is not the shape of, इसकी जो shape है बेटा ये गलत है, ठीक है। sp3d2 इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तो इसकी जो शेप है देखो मैं अभी ड्रॉ करती हूँ। इसकी जो शेप है वो आपकी ऐसे आनी चाहिए, स्क्वेयर प्लेनर लाइक दिस। दिस इज जीनोन हैविंग 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन and 4 fluorine. Okay, and how many lone pairs are present here? 2 lone pairs, 1 and 2. So this is the shape of square planar, but ये आपकी wrong है। okay, स्क्वायर प्लेनर जो शेप है वो आपकी ये आएगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BrF3। देखो बेटा ब्रोमीन के वैलेंस में 7 है, फ्लोरीन के वैलेंस में भी 7 है, मल्टीप्लाई 3, तो 7 + 21 दैट इज इक्वल टू 28। 28 by 8, 8 3 जा 24 प्लस 4 by 2, सो दिस इज इक्वल टू 3 + 2 5। 5 है तो बेटा क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, sp3d, sp3d। ओके, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी और आपका जो है 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर। ओके, ये 2 लॉन पेयर आपकी, तो इसकी जो शेप आएगी दैट इज टी शेप। ये ऐसे भी बना सकते हो बेटा, ये आपने ब्रोमीन लिया, ओके, ये फ्लोरीन 1 2 3 और ये आपके जो है लॉन पेयर आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये आपके लॉन पेयर आ गए। नाउ दिस इज टी शेप, टी शेप। ओके, out one of the PCl +4 and PCl -4 that is not likely to exist, and why? PCl -4 किस लिए बेटा, क्योंकि phosphorus has 10 electrons, ठीक है, which cannot accommodate in the sp3 hybrid orbitals। इस वजह से क्या होता है, इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो PCl4- एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्टेट में क्या होते हैं, एकोमोडेट नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं हो सकते। ओके, तो ओनली कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है, ओनली PCl+4 एग्जिस्ट करती है। ओके, ये वाली स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज PH3 एंड H2S विच इज़ मोर एसिडिक एंड वाई। तो H2S इसमें आ जाएगा बेटा, क्योंकि H2S क्या है, बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सल्फर एटम्स, दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द PH3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच इज अ स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट, एंटीमनी H3 एंड बिस्मथ हाइड्राइड, ये हाइड्राइड है बेटा, ठीक है, वाई कौन सा है इसमें से, बिस्मथ हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिसकी टेंडेंसी है हाइड्रोजन को लिबरेट करने की, ठीक है, जो हाइड्रोजन को आसानी से दे देते हैं, मीन्स इट्स टेंडेंसी टू लिबरेट द हाइड्रोजन दैट इज मैक्सिमम, सो इट इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO2 एसिड, देखो, एंड वाई। अब H3PO2 देखो 1, ये ऐसे बनेगा बेटा आपका, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगा लो आप, ठीक है, 3 हाइड्रोजन अटैच, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, तो इसको हम डबल बनाएंगे। ओके, अब इसमें आप क्या कह सकते हो कि हाउ मैनी रिप्लेसेबल, सॉरी, व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ H3PO2। H3PO2 की बेसिसिटी क्या है,
मीन्स इसमें हाइड्रोजन एटम जो रिप्लेस हो सकता है वो केवल वन ही है, इसलिए ये मोनोबेसिक है। क्योंकि वन OH बॉन्ड है तो हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक ही रिप्लेस हो सकता है, दैट्स वाई इट इज़ अ मोनोबेसिक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, though nitrogen exhibit +5 oxidation state, it does not form pentahalides. Why? देखो, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन की एबिलिटी क्या है कि इसके अंदर क्या है, डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। ओके, नाइट्रोजन के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स है ये क्या है, एब्सेंट होते हैं। इसलिए जो नाइट्रोजन होता है वो केवल पेंटाहेलाइड्स फॉर्म नहीं कर पाता, ओनली ट्राईहेलाइड्स फॉर्म करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नोबल गैसेस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। वाई? क्योंकि जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं बेटा ऑल आर मोनो एटोमिक, और इनके अंदर जो इंटर एटोमिक फोर्सेस होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं। ओके, सो दे आर लिक्विफाइड एट ए वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाती हैं, सो दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, राइट द रिएक्शन टू शो द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2। ओके, H3PO2 क्या होता है, रिड्यूस करता है AgNO3 को, किस में चेंज करता है, मेटेलिक सिल्वर में। AgNO3 प्लस वाटर प्लस H3PO2, then it will give silver, metallic silver plus HNO3 plus H3PO4। ओके, सो ये क्या करता है, इसका क्या रोल है, रिड्यूसिंग बिहेवियर कैसे शो करता है ये बताना है, क्योंकि ये AgNO3 को मेटेलिक सिल्वर में चेंज कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई डज द PCl3 फ्यूम्स इन द मॉइस्चर। ओके, तो देखो बेटा कैसे है ये, this PCl3 that hydrolyze in moisture gives the fume of HCl। PCl3 में जब बेटा वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस HCl इज रिलीज। तो ये जो HCl जो होती है इसकी फ्यूम्स रिलीज होती हैं। ओके, तो इसको हम PCl जो होता है मॉइस्चर में फ्यूम प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्यूम्स मिलती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बेटा रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, कि वाई डज NO2 डाइमराइज। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि NO2 जो होता है दैट कंटेन द ओड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिहेव्स एज अ टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल्स। जब इसको हम डाइमराइज करते हैं तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है दैट इज़ N2O4 मॉलिक्यूल्स। तो ओड से ये इवन नंबर में चेंज हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 22, वाई इज़ ICl मोर रिएक्टिव देन I2। ये क्वेश्चन बेटा बार बार रिपीट होके आता है। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि ICl क्या है, दोनों ही हैलोजन है, इट मीन्स दे फॉर्म द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं, मीन्स इंटर हैलोजन कंपाउंड्स इज मोर रिएक्टिव देन द I2। ठीक है, बिकॉज ICl बॉन्ड इज वीकर देन द II बॉन्ड ऑफ आयोडीन। ओके, क्योंकि ICl जो बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, वीकर होता है, किससे, II बॉन्ड ऑफ I2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, why is BiH3 strongest reducing agent amongst all the hydrides of group 15 elements। अब देखो BH3 के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हैं, बिकॉज रिड्यूसिंग नेचर दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ MH बॉन्ड। ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ हाइड्राइड। यहाँ से यहाँ तक स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि जो आपका रिड्यूसिंग नेचर है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी जो होती है नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसलिए जो बिस्मथ होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। अब N2O5 में जो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी होती है दैट इज 4, बिकॉज ईच नाइट्रोजन एटम्स दैट हैज शेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा
ये नाइट्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन है, यहाँ 1 2 यहाँ और ये, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इंस्पायर्ड नील बार्टलेट फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन बिटवीन जीनोन एंड PTF6। देखो बेटा, ये PTF6 है, ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है, किस फॉर्म में चेंज कर देता है, O2 प्लस फॉर्म में। सो बर्टलेट थॉट दैट PTF6 दैट शुड बी ऑक्सीडाइज, ये जीनोन से जीनोन प्लस फॉर्म में बनाता है, बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ O2 दैट इज 1175 and xenon 1170 that are quite close। अब इसने इसी को, क्योंकि PTF6 क्या होता है, ये ही ऑक्सीडाइज करता है जीनोन को जीनोन प्लस फॉर्म में, ठीक है, तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है O2 और जीनोन की, दैट इज ऑलमोस्ट क्लॉज, ये क्लॉज होती है हमेशा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन द इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। ये इथाइल क्लोराइड है, जब इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनता है बेटा, यहाँ पे KCl बना देते हैं, और ये क्या बनता है, इथेनॉल, C2H5OH, ये बन जाता है। ओके, दिस विल बी फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज नेम द 2 पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्लोरीन गैस। फर्स्ट इज फॉस्जिन COCl2 एंड सेकेंड इज क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन का सेकेंड नेम क्या है, टीयर गैस, CCl3NO2। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्लोरीन गैस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच एरियोसोल डिप्लेट्स ओजोन लेयर्स। देखो बेटा, एरियोसोल क्या होता है, जैसे फोम्स हैं, स्प्रे है, ये क्या होता है, ये फिरोन से बना होता है, एरियोसोल फिरोन से, और फिरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO5। PO4 आना चाहिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। देखो, जो बेसिसिटी है H3PO4 की, वो क्या है बेटा, 2। कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ, P1 2 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट है, H3PO3 आएगा यहाँ पे, H3PO3 बेटा ये। ओके, तो देखो इस केस में क्या होता है, 2 OH ग्रुप है, इट मीन्स इट कंटेन्स ओनली 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम विच आर प्रेजेंट एज अ OH ग्रुप, ठीक है, तो इसमें 2 OH ग्रुप है, तो 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर। देखो, phosphorus trihalides that react with the water and it give the phosphorus acid and hydrochloric acid। जब PCl3 में हम वाटर ऐड करते हैं then it will form a phosphorus acid plus HCl। so this reaction is very quick and exothermic reaction। ओके, ये क्या है, exothermic reaction है, ये बनाता है। now next is draw the structure of H3PO2 molecule। H3PO2 molecule का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये बेटा आंसर गलत गिवन है इसमें, देखो क्या है इसका, ये आपका फास्फोरस है 1 2, यहाँ पे 1 2 एंड 3, दिस इज हैविंग 1 OH एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हैविंग अ डबल बॉन्ड। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। ओके, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा इसका। नाउ नेक्स्ट इज Fluorine exhibit only -1 oxidation state while the other halogens that exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation state। Why is it so? देखो, क्योंकि बेटा फ्लोरीन -1 ही क्यों शो करता है, इसने क्वेश्चन ये पूछा है, क्योंकि बेटा फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है एंड दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द हैलोजन ग्रुप एंड इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होता है, इस वजह से ये क्या शो करता है, ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और अदर हैलोजेंस जो होते हैं उनके अंदर डी एंड एफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। वाई, कि नाइट्रोजन भी तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फिर भी वो पेंटाहेलाइड्स
नहीं बनाता। देखो, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, स्मॉल साइज होता है नाइट्रोजन का। दूसरा, इसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, सॉरी वेकेंट होता है डी ऑर्बिटल्स, और जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो एब्सेंट होता है, ये होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंट ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, सो दिस इज द मेन रीजन। नाउ नेक्स्ट इज द bond enthalpy of fluorine that is lower than that of chlorine. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है बॉन्ड एंथैल्पी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। और फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने की वजह से उसके अंदर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स स्मॉल साइज एंड हाई inter electronic repulsion, so due to this the bond enthalpy of fluorine is lower as compared to chlorine. Okay, now next is write the structure of PCl5. PCl5 का स्ट्रक्चर बताना है बेटा। देखो, ये PCl5 है। फास्फोरस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5, प्लस क्लोरीन में 7, 7 मल्टीप्लाई 5, तो 5 + 35 दैट इज इक्वल टू 40, 40/8, 8 5 जा 40 एंड दैट इज 0, 0 लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर, तो 5 बॉन्ड पेयर है, इट मीन्स इट शोज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। TBP इसकी जो है शेप आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड दिस विल शो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री। These 3 are equatorial bonds and these 2 are axial bonds. Okay, this is pentagonal bipyramidal geometry. Okay beta, sorry trigonal bipyramidal, this is TBP geometry, TBP. Okay, trigonal bipyramidal. Now next is HF is weaker acid than the HCl. बेटा HF वीक क्यों है? क्योंकि इसमें हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है HF में, दैट्स वाई इट इज़ अ वीकर एसिड देन द HCl. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ Xgf2 मॉलिक्यूल्स। ये हम कर चुके हैं, लीनियर इसकी शेप आएगी और ये स्ट्रक्चर बनाया हमने। 3 लॉन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर एंड 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ H3PO2, H3PO3, इसमें बेसिसिटी कितनी थी, 2। ओके, क्योंकि जो बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्रेसेबल हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड, दैट इज 2, एंड 2 होने की वजह से क्या है, डाई बेसिक शो करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाई डज NO2 डाइमिराइज। ये NO2 है बेटा, NO2 डाइमिराइज क्यों होता है, ये हम क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि इसके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वैलेंस शेल के नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए लेस स्टेबल है और स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए इजीली से डाइमिराइज हो जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज NH3 एक्ट एज अ ल्यूविस बेस। ल्यूविस बेस क्यों कहते हैं NH3 को, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई इट एक्ट एज अ ल्यूविस बेस। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज why is F2 a stronger oxidizing agent than the Cl2। तो रीजन आप बताओगे, ड्यू टू द लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, सो इट गेट रिड्यूस। तो फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और यहाँ पे F नेगेटिव बनाता है। नाउ फ्लोरीन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट while the chlorine is a weak oxidizing agent। अब क्लोरीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ड्यू टू द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, दैट्स वाई दिस विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्गर एजेंट। ओके, तो क्लोरीन जो होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म करता है एज कम्पेयर टू, सॉरी फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन में हम सिर्फ रीज़न ये बता सकते हैं बेटा, स्मॉल साइज, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वजह से इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और ये स्टेबल बन जाता है। ओके, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो शो करता है 2s2 2p5, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो इट फॉर्म अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ओके,
जबकि जो क्लोरीन है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। ओके, इसलिए इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की थोड़ा सा कम होती है, दैट्स वाई इट डज नॉट रिड्यूस। ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Now students, these are the very important questions related to chapter P block elements. Please do these questions. Okay. Thank you students.